Hello everyone, greetings from ISA Nagpur City branch. During the past 1 year of my tenure, I have tried to cover maximum aspects of personality development for an anesthesiologist. Good communication skills are important for every doctor. Doctor-patient relationship has been the basis of family doctor practice in India in the past. All problems arise from lack of good communication. So we at ISA Nagpur have tried to make a small video on good communication in order to show good patient outcome. Patient listening, empathy and verbal and non-verbal components are important aspects of good communication. I am grateful to Dr. Anjali Bhure Madam, Vice President ISA National, who has given her valuable time for this video. GC member Dr. Sheetal Dalal, Dr. Hena Pahuja for giving her time for the coordination of this video. I am grateful to all HODs, Dr. Vaishali Shelgaonkar, Dr. Barsagade sir, Dr. Pratibha Deshmukh madam and Dr. Sarita Zogrekar, Honorary Secretary and all the team members who have participated in this video. So thank you very much. Hope you enjoy watching it. Thanks a lot. Hello friends, I appreciate the initiative taken by Indian Society of Anesthesiologists, Nagpur City branch in making a video-based session on enhanced communication skills in building a trustworthy relationship between a doctor and patient. During present times, especially in critical situations, it becomes mandatory that every anesthesiologist understands the importance of communication skills in day-to-day practice. And we can have an impact on patient if we learn these skills. Each patient offers a great learning experience to us and we get a valuable opportunity to learn through interacting with them, which will improve patients' confidence, satisfaction, acceptance to have effective communication for better patient relationship and for better outcome. And this is also going to help patient in choosing their options which are available for them in their treatment course. Patients listening, non-verbal behavior and empathy are the integral part of the communication skills for developing bond and a trustworthy bond between the doctor and the patient relationship. I hope you find this video interesting and becomes a great learning experience for you for enhancing your communication skills. Thank you very much. Long live ISA. खा लो बेटी, कल रात से भूखी हो। अरे क्या खा लो बेटी, तुम्हारा ऑपरेशन है ना, इसको छुपाओ। खाना खिलाने से मना किया था ना। क्या छुपा रहे हो, दिखा इधर। समोसा क्यों खिला दिया? ऑपरेशन के पहले कुछ भी खिलाने से मना किया था ना। एक ही वाला खिलाया मैडम। ऐसे नहीं होता है। एक ही तो बाइट है, ले लेना। एक बाइट नहीं, मैंने देखा है पूरा का पूरा एक समोसा खिलाया है। अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ेगा। क्या हुआ तो? सर अपेंडिसेक्टोमी के लिए पेशेंट पोस्टेड थी, एनबीएम ब्रेक कर दिया है, पूरा का पूरा एक समोसा खा गई है। अरे आपको कल ही सुनने की जांच के दरमियान बताया था कि पेशेंट को ऑपरेशन से पहले 6 घंटा कुछ खाना नहीं देना है। समझता नहीं आपको, बेवकूफ हो क्या? ये क्या बात हुई? हमारी बेटी कल रात से भूखी है और अब बोल रहे हो कि केस कैंसिल। ऐसे कैसे? इसने खाना खा लिया, अब इसका केस कैंसिल हो गया। ऐसे कैसे केस कैंसिल हो गया? कैंसिल करना पड़ेगा, अभी लटक गया ऑपरेशन, वार्ड में लेके जाओ, बाद में करना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो? ऑपरेशन के पहले नहीं खाना होता है, तुम्हें पता है ना, बताया था। अभी केस कैंसिल हो जाएगा, मुझे सीनियर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैम हमारा एक केस है लैप अपेंडिसेक्टोमी का, 16-year-old फीमेल, लेकिन उसने एनबीएम ब्रेक किया, तो अभी नेक्स्ट क्या करना होगा? ठीक है, अभी केस तो पोस्टपोन हो जाएगा, फिर भी मैं मैम को एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। वो लैप अपेंडिसेक्टोमी की पेशेंट है ना, उसने एनबीएम ब्रेक कर दिया है, समोसा खा लिया है। अच्छा, चल बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं सुन्नी की डॉक्टर हूँ। आपके पेशेंट ने अभी खा लिया है तो फिलहाल हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर खाना थोड़ा भी पेट में रहा तो अन्न नलिका से आके श्वास नलिका में चला जाता है। पेशेंट को ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट को जान का खतरा हो सकता है। अगर वो फेफड़ों में गया तो पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, उसके लिए हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या अब हमारे पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होगा? हाँ,
तो आपके पेशेंट का ऑपरेशन होगा। यदि उसका ऑपरेशन अभी इमरजेंसी है नहीं है तो हम उसको 8 घंटे भूखा रखते हैं। 8 घंटे के बाद हम उसको ऑपरेशन के लिए ले लेंगे, तभी हम उसको सलाइन लगा के रख देंगे। धन्यवाद मैडम। अब हम हमारे पेशेंट को भूखे पेट ही ऑपरेशन के लिए लाएंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हाँ क्या है? आज मेरे बच्चे का ऑपरेशन होना था। कौन सा बच्चा? काय का ऑपरेशन? वो पेट में सूजन के लिए ऑपरेशन बताया अच्छा था। हाँ, एक हर्निया वाला पेशेंट था आज। क्या उसको देखो सर्दी है तो जान का खतरा है तो आज ऑपरेशन नहीं होगा। आप क्या बात कर रहे हो? अरे तुमको बताया ना कि अभी सर्दी है, जान का खतरा है, ऑपरेशन नहीं होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ अरे रहा तुमको है। ज्यादा समझने की जरूरत भी नहीं, ज्यादा समझदार मत बनो। इतना काफी है, बता दिया इतना काफी है ना। और क्या? किसी को बुला लूंगी? अरे मैं मैं साथ में। 50 लोग से बात नहीं करता। तुम माँ हो, तुमको बता दिया। मेरे को और कोई दूसरे काम नहीं है क्या? डॉक्टर साहब, मैं आ सकती हूँ? हाँ बोलो क्या है? आज ही मेरे बच्चे का हाँ हाँ ऑपरेशन हाँ हाँ, हुआ। अच्छा बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। ठीक है, ये तुम्हारा हर्निया वाला बच्चा है ना? हाँ। आप इसकी माँ हो? हाँ। आपको हिंदी समझ में आती है ना? जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहा हो? हाँ, ठीक है, समझ आज ऑपरेशन होना था इसका, मगर इसको सर्दी है काफी ज्यादा, नाक बह रही, तुमने देखा हो ना? तो ऐसे भी हालत में क्या होता है, ऑपरेशन में जान का खतरा रहता है, तो इसलिए आज ऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा। तो समझ में आया तुमको? देखो हाँ। मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ। जब सर्दी होती है ना, किसी भी बच्चे को या बड़े आदमी को भी जब सर्दी होती है ना, तो नाक से लेके फेफड़े तक पूरा हमारा जो सांस लेने का रास्ता है ना, उसमें कफ जमा हो जाता है। तो वो जो कफ रहता है वो बाहर से नाक से तो हमको बहते हुए दिखता है, मगर फेफड़े में जो कफ जमा रहता है वो दिखता नहीं, मगर रहता है। वो कफ फेफड़े में भी वैसे ही रहता है, और उसमें अभी इसको ऑपरेशन के लिए बेहोश करना पड़ेगा, तो सांस के रास्ते से सूंघनी की नली डालनी पड़ेगी। तो ऐसे समय में अगर अपन ने सूंघनी की नली डाली कि बच्चे को सर्दी है और उसमें सूंघनी की नली डाली, तो अचानक से स्पाजम हो जाता है। अच्छा, स्पाजम मतलब मैं समझाता हूँ। मतलब जैसे अभी सांस की नली ऐसी है और अपन ने सर्दी वाली अवस्था में इसमें सांस की नली, ऑपरेशन की नली डाली, सूंघनी की नली डाली, तो रास्ता अचानक से सिकुड़ जाएगा। इसको स्पाजम बोलते हैं, और इससे बच्चे को जान का खतरा हो जाता है, समझी? तो इसलिए अभी अपन इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे, ठीक है? जब सर्दी ठीक हो जाएगी तब करेंगे। ठीक है, अभी मुझे सब समझ में आ गया है। हाँ। आपको संतुष्ट हो ना? समझ हाँ, गया ना? हाँ। ठीक है, अब चिंता मत करना, 8 दिन बाद हो जाएगा ऑपरेशन। धन्यवाद डॉक्टर। बीपी इतना बढ़ा हुआ है आपका? बराबर टाइम पे लेते हो क्या दवाई? शुगर भी इतना ज्यादा है, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? रोज बराबर टाइम पे लेना है दवाई। अभी इतने ज्यादा बीपी और शुगर में हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, कैंसिल कर रहे हैं हम ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ये रोज दवा लेती है, हम बहुत दूर गांव से आए हैं, आप ऐसे कैसे ऑपरेशन कैंसिल कर सकते हैं? आज ही ऑपरेशन कीजिए। बीपी और शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऑपरेशन आज ही कीजिए। तुम सिखाओ मत मुझे, हमको ज्यादा पता है, ऑपरेशन नहीं होगा आज। आपका बीपी बहुत ज्यादा है, शुगर भी बढ़ा हुआ है, आप दवाई टाइम पे लेते हो ना? हाँ मैडम, समय पे ही लेती है ये दवा। अच्छा, फिर दवाई का डोज बढ़ाना पड़ेगा या फिर दवाई बदलनी पड़ेगी। एक काम करेंगे, आज हम ऑपरेशन कैंसिल करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा बीपी पे ऑपरेट किया तो भी ऑपरेशन के दौरान बहुत खून बह सकते हैं और दिमाग का जो नस है वो फट सकती है, आईसीयू में रखना पड़ सकता है उसको, और इतनी ज़्यादा शुगर है कि ऑपरेशन के बाद वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो एक काम करेंगे, आज हम ऑपरेशन कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है वो इतना इमरजेंसी नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते दवाई लीजिए बराबर, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है डॉक्टर, तो अब मैं इसको खाना दे सकती हूँ? हाँ हाँ दे सकते। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर।
क्या तकलीफ है भैया? कैंसर का ऑपरेशन है। नाम क्या है? राम मुरली। ठीक है। इसके पहले कभी ऑपरेशन हुआ है? नहीं। और बीपी वगैरह? हाँ। भैया बीपी पहले ठीक करना पड़ेगा। बीपी ठीक है सर मेरा। तो तुम डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूँ? मैं डॉक्टर हूँ ना। मेरा बीपी ठीक है सर। बीपी ठीक होने से नहीं होता है भैया, अभी आप जाओ, बाद में देखते हूँ मैं, ठीक है? नहीं सर। अरे बाद में जाओ, अभी क्या? अभी देखो तुम। अरे अभी नहीं देख सकता, मेरे को काम है। मैं आपका नाम क्या है? राम मुरली। उम्र कितना है? 30 साल। कहाँ से हो आप? अकोला जिला पाकुड़। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? कैंसर हुई। अच्छा, तो हम सुन्नी के डॉक्टर है। आपको जो ऑपरेशन होगा, आपको सुन्नी देके बेहोश करेंगे, मुंह में नली डालेंगे, ठीक है? फिर ऑपरेशन होता है। फिर ऑपरेशन अगर बराबर हुआ और आपका सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं रही तो हम नली निकाल देंगे और आपको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे, ठीक है? और आपको बीपी का दिक्कत है क्या? नहीं है, वो बीपी की दिक्कत नहीं है। पर अभी आपका बीपी ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना? तो जब तक बीपी आपका नॉर्मल नहीं आ रहा है तो हम आपको नहीं ले सकते। अभी आपका ये ऑपरेशन इमरजेंसी नहीं है, ठीक है ना? अगर इमरजेंसी होता है तो बीपी में ज्यादा भी हो तो ले लेते हैं, और ये इमरजेंसी नहीं है तो बीपी ठीक करने के बाद आपको लेंगे। अगर बीपी ज्यादा रहा तो ऑपरेशन के बाद आपको ब्लीडिंग होने का चांसेस है ऑपरेशन के दौरान, ठीक है? आपको जान को खतरा रहेगा, स्ट्रोक होने का चांसेस है, ठीक है ना? तो बीपी नॉर्मल करेंगे, फिर बीपी नॉर्मल हो जाएगा तो हम आपको ऑपरेशन के लिए लेंगे, ठीक है? तब तक आप आराम से रेस्ट करो, बीपी का गोली स्टार्ट कर देंगे और उसको बराबर लेते रहना, ठीक है? अभी मेरे पेशेंट की तबीयत कैसी है? ओहो, आपको कितनी बार बता चुकी हूँ मैं, आपके पेशेंट की तबीयत में कोई भी सुधारना नहीं है। आपके पेशेंट ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड? डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कहिए, आप कहिए कि वो ठीक है, कुछ हो सकता है और कुछ अपन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ, आपके पेशेंट के बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब जो भी है, आपने जहां से भी सुना है, जहां से भी आपने देखा है, आपको उसकी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। कंसल्ट जो भी है आप दे दीजिए। और वैसे भी आपके पेशेंट ब्रेन डेड है, उनकी तो बचने की उम्मीद है नहीं, तो आप कर ही लीजिए आप ऑर्गन डोनेशन अब, ठीक है? डॉक्टर साहब अभी हमारे पेशेंट की तबीयत कैसी है? अरे आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आप बैठिए, प्लीज बैठिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब बताइए ना कैसी है तबीयत अभी उनकी? देखिए, आपका पेशेंट को न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा है। अच्छा। और वो उनका बोलना ऐसा है कि ऐसे केसेस में हम उनको ब्रेन डेथ बोलते हैं, उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी है। नहीं, आप कभी कोई चांसेस नहीं है बचने के? नहीं, ऐसे में उनका ब्रेन रिकवर होने का कोई चांस नहीं है। पर फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि उनका हार्ट काम कर रहा है पर बाकी के अवयव काम नहीं कर रहे और ब्रेन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है? मैं आपको सुझाव दूँ कुछ? हाँ बताइए डॉक्टर साहब। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में, इंडिया में हम लोग ऐसे केसेस में ऑर्गन डोनेशन मतलब अवयव दान सजेस्ट करते हैं। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि आप आपके घर वालों से थोड़ा बात कीजिए और अगर हमको ऐसे इस तरीके की कंसेंट देते हैं तो हम अवयव दान के लिए इनको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछती हूँ हमारे घर वालों से सबसे, और अगर हमारे पेशेंट से किसी और की ज़िंदगी बन सकती है तो अच्छी बात है। धन्यवाद।